Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So, we start with the function of tubules. In the previous lecture, we discussed the mechanism, how the urine is formed due to the three mechanisms. The first is ultrafiltration, the second one is the ultrafiltration, then selective secretion and reabsorption, rather absorption. These are the three different methods ki after that the urine will form. So now which are the parts do this functions, like this three functions, कौन से पार्ट है वो कौन से फंक्शन करते हैं वो हमें आज देखना है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ nephron, or rather you can say uriniferous tubules. So the first part of nephron is Bowman capsule, and in the Bowman capsule there is a glomerulus, and the ultrafiltration process occurs in this region or in this part of tubule. So you can say that this is the part ki jahan pe ultrafiltration, or you can say a pressurized filtration is occurs. Okay, now after the ultrafiltration there is the two different things. एक है selective secretion and second is absorption. Now as you know कि in a day 180 liter filtrate is formed. So the urine secretion is 1.5 liter only. So the most of the amount of water, most of the amount of nutritive material is absorbed by this different parts of different parts of nephron. Okay, so first of all we start with the PCT, proximal convoluted tube, PCT. Okay, now what happened with the PCT? So in the PCT, first of all, they have a cuboidal epithelium. So the cells are with the cuboidal shape. That's why we call them cuboidal epithelium. So there is a cuboidal epithelium. The main function of this cuboidal epithelium are to absorb the material. Now which type of material they absorb? They absorb the sugar, means glucose and all, means जो carbohydrate material है which is filtrate into the which is present into the filtrate, they absorb. Okay, so they absorb the amino acid, they absorb the glucose, they absorb the more amount or much amount of water. Okay, so they absorb water, glucose, amino acids, etc., etc. Except this, they also absorb the electrolytes. Okay, they also absorb the electrolytes. Second thing, they also absorb the sodium ion and the useful ions. Now, what about the secretion? Sir, there are few materials, okay, which is secreted into this tubules or the part of PCT. The materials are ammonia, potassium ion. Okay, so ammonia ion, then potassium ion, then hydrogen ion. These are the materials which are secreted by tubules in the PCT region, or you can say PCT part of nephron. Okay, then the filtrate comes into the descending loop of Henle, or descending part of loop of Henle. So they enter into the descending part or rather loop of Henle. Now loop of Henle has the two different parts. First is the descending part because they are downwards, and the ascending part they enter into the cortex region or upwards. Okay, so as you know, PCT, DCT and Bowman capsules, these parts are present in cortex region. This is the cortex region. Okay, and this is the medullary region. I draw a dotted line to differentiate the cortex and medulla. Okay, so the lower part is present in the medulla and the upper part is present in the cortex. Now, this is the descending loop of Henle. Okay, so in the descending loop of Henle, the tubules are, now the two differentiation is this. Listen carefully. The descending loop of Henle are permeable for water. So they are permeable for water. That's why the filtrate have the much amount of water, as you know. So the water is absorbed by descending loop of Henle. So यहाँ से water बाहर निकलता है because the water is permeable and ions and electrolytes are not permeable.
So the membrane of this descending part does not allow any substance except water to pass through its membrane. Clear? So the only water is कि जो transport होता है from descending loop of Henle to medullary region. Which means, मैं एक आपको hint दे देता हूँ, which means the osmosis processes occurs in this region. Means there is a differentiate between the concentration. Means यहाँ पे filtrate concentration से यहाँ पे medulla का जो concentration है वो almost ज़्यादा होगा. That's why water entered into the medullary region. ये ऑस्मोसिस का रूल है कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली वो वाटर वहाँ पे मूव करता है. मींस मेडुलरी रीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. लिसन केयरफुली, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुला इज मोर और अदर मच कंपेयर टू फिल्ट्रेट. ओके, नाउ ये बात पता चल गई कि डिसेंडिंग में क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड इट इज ओनली परमिएबल ओनली फॉर वाटर. सॉरी, ओके सॉरी, द वाटर इज only passes through the nephron or descending loop of Henle. Now what about the ascending part? Now the membrane is impermeable for water. Impermeable for water. So there is no passing of water, not from tubule to medulla or medulla to tubule. Just a transfer of ions like Na plus Cl minus. So the electrolytes and ions are permeable. Sorry, the membrane is permeable for the ions only, not for the water. So this is the difference. कि descending part है यहाँ से नीचे जो जा रहा है, it is only permeable for water, and ascending part है, it is permeable for ions. So sodium and chloride and then ions are comes out from the tubules. Okay, so filtrate concentration है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊपर जाता है. कॉर्टेक्स का कॉन्सेंट्रेशन मेडुला के जैसा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. नाउ कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे जो हो रहा है, इट इज ड्यू टू दी कॉन्सेंट्रेशन. नाउ कॉन्सेंट्रेशन जो मेजर करता है वो करता है ऑस्मोलारिटी. सो यहाँ पे जो ऑस्मोलारिटी है वो ऑलमोस्ट 1200 है और यहाँ पे 300 है. नाउ सी द डिफरेंसेस. यहाँ पे वाटर मैक्सिमम एब्सॉर्ब क्यों होता है और लूप ऑफ हैंडले में जाते ही फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलारिटी. ओके, पर लीटर के अंदर होता है वो. सो मेरी ऑस्मोलारिटी सो ऑस्मोलारिटी पर लीटर, सो इट इज नॉट एज ऑस्मोलारिटी. सो 1200 ऑस्मोलारिटी यहाँ पे 300 है. सो मेडुला में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू कॉर्टेक्स. क्लियर? नाउ डीसीटी में क्या होता है वो देख लेते हैं. डीसीटी में फिर से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है उनका एब्जॉर्प्शन होता है. एंड फिर से सिक्रीशन होता है किसका? सोडियम, हाइड्रोजन, एमोनिया, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ सर आई हैव अ डाउट. मुझे एक बात आपको कहनी है कि सर यहाँ पे कई ऐसी चीजें भी होंगी कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हुई है. Because some are heavy molecules, some of the compactly bind molecules. That's why they are not separated out or they are not filtrate out. So हमें उस substance या उस material को यहाँ पे secrete करना होगा. For an example, any drug. If you take any drug for the relieving of pain killer आपने ली है या वैसे कोई ड्रग है कि फॉर एन एग्जांपल पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, सो वो ड्रग और एंटीबायोटिक यहाँ से सीक्रेट होगी डीसीटी के अंदर, जो फिल्ट्रेट के साथ ऐड हो जाएगी. सो यूरिन के साथ वो इजीली बॉडी के बाहर जा सके. ओके, जो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाई लीवर की अंदर. सो लीवर के अंदर जनरली ड्रग्स एंड ऑल दे आर डिटॉक्सिफाई और डीनेचर्ड, बट जो नहीं हो पाते वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो यूरिन के साथ सीक्रेट हो जाते हैं. ओके, सो डीसीटी के अंदर वो भी होता है. देन कलेक्टिव डक्ट. नाउ कलेक्टिव डक्ट के अंदर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, बट द फ्यू अमाउंट वहां पे यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है. नाउ यहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए कि सर यूरिया तो हमें रिलीज करना है, सो व्हाई वी एब्जॉर्ब यूरिया इन दिस रीजन, खास करके दिस मेडुलरी रीजन, बिकॉज कलेक्टिव डक्ट काफी लंबी होती है. ओके, सो व्हाई द यूरिया आर एब्जॉर्ब्ड?
नाउ सेकेंड थिंग कि सर यूरिया ही हमारा मेन एक्सिटरी मटेरियल है, सो कलेक्टिव डक्ट का मेन फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब द वाटर, तो वाटर तो एब्जॉर्ब करता है, सो व्हाई दे एब्जॉर्ब द यूरिया? बिकॉज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी रीजन। ये आंसर है आपका, लिसन केयरफुली। मेडुलरी रीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए दे एब्जॉर्ब द यूरिया, actively transported. Okay, so they actively transport the urea. Okay, now हम देखते हैं कि सर ये पूरी प्रोसेस जो हुई वो किसकी वजह से, द मेन रोल किसका है यहाँ पे? ये तीनों के अंदर जो भी प्रोसेस हुई है या व्हाट एवर द प्रोसेस अकर्स इन द ट्यूब्यूल्स, व्हाई? सो पीसीटी का और डीसीटी वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर वो ठीक है, ये मेडुलरी रीजन में इतना कंसंट्रेशन क्यों है? व्हाई दिस कंसंट्रेशन ज्यादा है? सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई द कंसंट्रेशन इज हियर? सो द आंसर है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ड्यू टू द काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म और हाउ कंसंट्रेशन, द फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन वो कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है, व्हिच इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। As you know कि ये जो efferent artery है, ये efferent artery का diameter है वो कम है, then efferent artery है, they arises from Bowman capsule and then they arranged around the tubules and खास करके the tubule or the blood vessels which present around the loop of Henle, which is known as vasa recta. The blood vessels or blood tubule which present around the loop of Henle, which is known as vasa recta. Now vasa recta is also have two different regions. Okay, they also have two different regions. जैसे उसके पास means ये मैंने रिस्पेक्टिव डायग्राम ड्रॉ किया है, इतना हमारे होता है। ओके, सो जैसे ही लूप ऑफ हैंडलिंग के पास डिसेंडिंग एंड असेंडिंग है, वैसे ही वासा रेक्टा का ये पार्ट डिसेंडिंग है और ये पार्ट असेंडिंग है। ओके, बिकॉज जैसे ही लूप ऑफ हैंडले है वैसे ही उसके अराउंड है, दैट्स व्हाई। नाउ यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा है? ब्लड फ्लो डाउनवर्ड्स, यहाँ पे अपवर्ड्स। यहाँ पे फिल्ट्रेट का डायरेक्शन क्या है? फिल्ट्रेट यहाँ पे डाउनवर्ड्स है, यहाँ पे अपवर्ड्स है। So, if you talk about the loop of Henle, कि loop of Henle में फिल्ट्रेट है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, वैसे ही वासा रेक्टा के अंदर ब्लड की डायरेक्शन अलग अलग है। सो दिस टाइप ऑफ एंटी डायरेक्शनल फ्लो इट इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, okay, because of anti direction of blood and anti direction of filtrate. Okay, now उसकी वजह से क्या होता है सर? So listen carefully. यहाँ पे concentration है 1200 osmolarity. It is due to कि जैसे ही descending part में blood यहाँ पे आता है, blood से actively transport होता है सोडियम and क्लोरीन। ओके, सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं सोडियम एंड क्लोरीन। क्लियर? जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो क्या पे आता है? मेडुलरी रीजन में, जो मेडुला का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते हैं। ओके, बिकॉज व्हाई इज इट सो? बिकॉज यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब होगा और वाटर भी यहाँ पे आएगा, सो वो ऑस्मोलारिटी या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन उसको मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोसिस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक्टिवली हम सोडियम एंड क्लोराइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी ब्लड वेसल, और यू कैन से असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, सॉरी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। नाउ ये जैसे काउंटर करंट यहाँ पे अपर जाएगा, अपर साइड, सो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम एंड क्लोराइड है वो ब्लड के अंदर वापस आएगा, तो ब्लड कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाए। जैसे ही वो कॉर्टेक्स के रीजन एंटर करेगा, ब्लड कंपोजिशन है वो सेम हो जाए, उसमें कोई
अगर चेंज ना हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहे, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है वो सोडियम और क्लोराइड को हम वापस डाल देंगे। और इसी बात ये कहाँ से आएंगे सोडियम और क्लोराइड, सो यहाँ से तो एब्जॉर्ब हुए हैं, सेकंड थिंग यहाँ से भी एब्जॉर्ब हुए हैं सोडियम एंड क्लोराइड। याद करिए कि एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पार्ट से सोडियम एंड क्लोराइड बोथ है वो एब्जॉर्ब हुए, सो दे ट्रांसफर्ड इनटू द एसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा और एसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। सो ये एक बात सब देख लीजिए कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं और फिर से वापस ब्लड में डाले जाते हैं, यहाँ से ब्लड से निकलते हैं फिर से डाले जाते हैं और नेफ्रॉन से भी एब्जॉर्ब होते हैं। सो मेडुलरी रीजन में ये जो सोडियम क्लोराइड एंड थर्ड पार्ट जो हमने बताया था कि कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स से यूरिया जो एब्जॉर्ब हो रहा है, सो यूरिया भी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, सो दे मेंटेन दिस कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअस, सो दे मेंटेन दिस कॉन्सेंट्रेशन 1200 milliosmol or you can say osmolarity. That's why the countercurrent mechanism is there. Okay, to maintain the medullary concentration. Okay, और जैसे जैसे ये concentration आपको कॉर्टेक्स की तरफ आते जाएंगे, concentration है वो डिक्रीज होता जाएगा। और ये concentration हमें क्यों रखना है? टू फिल्ट्रेट concentration, फिल्ट्रेट को concentrate करने के लिए ये concentration यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर? और उसको मेंटेन कौन करता है? वासा रेक्टा और यू कैन से NaCl एंड यूरिया की जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। सो NaCl कहां से निकलते हैं? दे एक्टिवली कम्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड वो वापस एंड सेकंड थिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी वो एब्जॉर्ब होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी एब्जॉर्ब होते हैं और वो वापस कहां पे जाते हैं? दिस ascending part of वासा रेक्टा। क्लियर? और ये प्रोसेस क्यों होती है कि NaCl को यहाँ पे रखा जाता है? बिकॉज टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुला। सो NaCl एंड यूरिया दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुला। सो जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके, दैट्स व्हाई। ओके, सो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलेशन देखेंगे कि ये पूरी जो नेफ्रॉन है उसके अंदर फिल्ट्रेट जो है उसका रेगुलेशन कौन करता है, कैसे होता है। ओके, सो आज यहाँ तक रखता हूँ, बाय।